جیسے کہ اگر ہم خاص کشمیر کی بات کریں تو صوفیوں کا یہاں پر گہوارہ ہے. اسی کے ضمن میں ہم یہاں کریم شورہ جہاں پر تقی احمد بٹ جسے ہم جو ایک صوفی شاعر ہیں بہل پائے شاعر ہیں تو ان کی جو ایک آب حیات رسم رونمائی ان کی ایک کتاب کی اور جس میں درس دیا گیا ہے آنے والی جو ہماری پود ہے جو ہماری نسل ہے تو کیسے ہم احترام کرنا ہے بڑوں کا تو کیسے ہمیں چلنا ہے اپنے دین و مذہب اور صوفی گہوارہ کیسا ہے یہ صوفیزم اس پہ بھی ایک درس دیا گیا ہے. پہلی بات بتاؤں گا یہ ثقافتی سے زیادہ روحانی پروگرام ہے. یہ روحانیتی پروگرام ہے. اس میں صوفی شاعری کی بات ہے. ایک صوفی کا کلام ہے جو آج اجرا ہوا ہے اور جو خدا دوست انسان ہے اس کی بات ہے. یہ ہماری ثقافت کا حصہ. یہ بھی صحیح ہے کہ صوفیت ثقافت کا حصہ ہے اور ان کے زندگی کا جو طور طریقہ ہے جو ان کی کتاب میں بھی بہت کچھ لکھا ہے لال صاحب کے, اگر انسان پڑھے اور اس پہ عمل کرے تو بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابھی یہاں فراز صاحب نے بھی ایک اپنی تقریر میں کہی کہ اگر یہ نکل کے ہمیں کہیں تم اچھے عمل کرو تو نماز پڑھو تم یہ کرو وغیرہ کرو تو شاید ہمیں لگے گا کہ واضح خانی ہو رہی ہے. جب یہ اپنی شاعری میں یہ چیز لکھتے ہیں اور اس کو ایسے واضح کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بالکل کچھ نہیں ہیں اور اگر ہم اچھی راہ اللہ کی پکڑ لیں تو ہم کچھ بن سکتے ہیں, تو اس کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ایسی مجلسوں کی. اور یہ کشمیر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں ایسے بزرگ تھے اور آج بھی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا کشمیری شاعری کا جو سب سے زیادہ ذخیرہ ہے وہ صوفی شاعری ہے اور ہمارے صوفی ہیں سب روحانی بزرگ ہوئے ہیں. آپ شمس فقیر کی بات کریں, خواجہ حبیب اللہ نوشہری کی بات کریں, کسی بھی شاعر کی بات کریں, وہ روحانی بزرگ تھے. ان کے کمالات آج بھی گنوائے جاتے ہیں. اس سلسلے میں آج یہاں تقی احمد بٹ بمقام کریم شور بڈگام فقیر احد بٹ صاحب کے شعری مجموعے کی جو رسم رونمائی انجام دی گئی, ان کے شعری مجموعے کا نام ہے چشمہ آب حیات. اور واقعی یہ آب حیات کا چشمہ ہی ہے. اس میں وہ پند و نصائح ہیں, ہدایات ہیں جو ہماری آنے والی پود اور ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا کلام اپنی اہمیت اور افادیت رکھتا ہے اور ان کا کلام ہر جگہ پر ہمیں اس دنیا میں نیک کردار اور صالح آدمی بننے کی تاکید کرتا ہے. اور یہی اسلاف کا طریقہ رہا ہے اور یہی اسلام کی تعریف ہے اور اسلام کا پیغام بھی, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں یکساں محبت اور خلوص کی ضرورت ہے. نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے اور صوفی سلسلے پر آ کر ہمیشہ ہر ایک کے لیے, ہر قوم کے لیے, ہر ملک کے لیے, ہر ملت کے لیے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے. JK 24/7 کے لیے میں بڑگام سے ظہور سے. جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر سید سیرش اصغر کی طرف سے آج زیارت بابا پائم الدین رشی درگاہ میں. آج انہوں نے یہاں پر وزٹ کیا تو یہاں پر زائرین کو دی جانے والی فیسلٹیز کے حوالے سے یہاں پر انہوں نے ایک میٹنگ کا بھی یہاں پر جائزہ لیا. تو آپ کو سیدھے بابا رشی لے چلتے اور دکھاتے یہاں پر کیا کریں اس حوالے سے. ہے کہ جہاں بھی اب ہم جائیں وہاں کنکریٹ سٹیپس اٹھائیں کیونکہ باتیں بہت ہو گئی اور لوگوں کی جو شکایتیں ہیں شکوے ہیں وہ دور کرنے کا وقت اب آ پہنچا ہے. اور آپ بھائیوں سے ہم نے پہلے ہی دن یہ ریکویسٹ کری تھی کہ ہم تک شکوے اور شکایت بھی پہنچائیے اور آپ نے اس میں بہت اچھا رول کیا, ہم تک شکایتیں پہنچائی اور ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے نکلے ہیں تاکہ وقف ڈپارٹمنٹ جو فعال بنے گا تو انشاءاللہ رحمان جو زائرین ہمارے یہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی کوئی شکایت نہیں رہے گی. اور جو خاص کر ہمارے سب لوگوں کو جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ بہت ساری شکایتیں ہیں. ہم یہ انکار نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ ان کو جو شکایتیں تھیں وہ غلط تھی. ہم کہیں گے ہم میں کوتاہیاں تھیں اور ہم ان کوتاہیوں کو اب ٹھیک کرنے کے لیے ہم بڑے پیمانے پہ آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پھر سے بلائیں گے اور جب آپ خود ہی کہیں گے کہ اب کوئی نہ شکایت ہے نہ شکوے ہے اور سارا ٹھیک ہو گیا ہے. جس طرح سے سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ جو گیسٹ ہاؤسز ہیں, جو زائرین آتے ہیں ان کو وہ بیسک فیسلٹیز نہیں مل پاتی ہیں. ٹوائلٹس کا مسئلہ ہے, پارکس کا مسئلہ ہے, جہاں پہ ہم انٹر کر لیتے ہیں ہماری پارکنگ کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں پہ شاپ کیپرز کا مسئلہ ہے
और जब हम यहाँ पे खाना पकाते हैं वो हम आज की डेट में भी पुराने ज़माने के तरीके से बालन से यहाँ पे खाना पकता है और उसके ज़रिए से यहाँ पे माहौल में आलूदगी हो जाती है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा गंदगी में तब्दील हो चुका है। उसके लिए भी हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत खाना पकाया जाता है उनको गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा यहाँ पे, और जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर गंदगी में आप देख रहे हैं बना तो हुआ है लेकिन वो सारा खराब हो चुका है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके ज़रिए से हम लोगों से अपील करेंगे कि जब आप होटल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं वहाँ आप साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप किसी भी दरगाह में जाते हैं और किसी भी यहाँ गेस्ट हाउस में बैठते हैं वहाँ आप ज़्यादा ही गंदगी उठाते हैं, वो आप उनको उस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। ये पहला सेटअप है। और जूते ऊपर लाने की इजाज़त नहीं होगी। जो आस पड़ोस में वो गंदगी फैलाते उसकी ये परमिशन नहीं होगी। जो यहाँ पे हमने टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं उनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटी भी मिले और पाकीज़गी भी मिले। जब वो दरगाह में दाखिल होते हैं वज़ू खाना होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वज़ू खाने को साफ़ सुथरा रखना ये लोगों की जिम्मेदारी है ताकि वो पाक होकर अंदर आए और जहाँ से वो पाक होते हैं वो भी पाक जगह हो जाए। R&B को डायरेक्शन जितने भी यहाँ पे आज ऑफिसर्स आए थे, डीसी साहिबा ने वो सारी डायरेक्शंस पास की हैं और इंशाअल्लाह रहमान वो आप साथी तो अंदर भी थे, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बाबा ऋषि का जो दरगाह है और यहाँ की ज़ियारत खूबसूरत बनेगी और सारे लोग खुशी से उसका वेलकम करेंगे। मुस्तफ़ा मेमोरियल फ्रूट मंडी सोपोर जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी में से मानी जाती है आज एक साला इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें अगर हम देखें प्रेसिडेंट फयाज अहमद मलिक के साथ साथ दीगर सोपोर फ्रूट मंडी से वाबस्ता लोग हैं। अगर हम फ्रूट ग्रोवर्स की बात, ग्रोवर्स एंड बायर्स प्रेसिडेंट है मुदस्सिर अहमद, उन्होंने भी जो है इस साला इजलास में जो है आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और साथ ही साथ अगर हम देखें फयाज अहमद मलिक जो कि सोपोर फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है इस मौके पर जैसे फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो है बाकायदा इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और देखा जाए तो जितने भी मसले मसाइल है, जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स के मसले मसाइल हो, या अगरचे हम देखें लगातार फ्रूट इंडस्ट्री की बात करें, जो लगातार फ्रूट इंडस्ट्री पिछले कई सालों से जो लॉस में चल रही है, तो उसके चलते जो है इस पे रोशनी डाली गई। और साथ ही साथ अगर हम देखें तमाम जितने भी बायर्स हैं, फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनको जो है उन्होंने जो है इस हवाले से जो है लोगों को रोशनी डाली और लोगों को ये भी कहा कि किस तरह से जो है आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कीजिए। पेस्टिसाइड आप नकली पेस्टिसाइड जो मार्केट में काफ़ी तेज़ी के साथ फैला हुआ है, उस पे जो है रोक लगाने के लिए किस तरह से इकदाम उठाए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें फ्रूट ग्रोवर्स की जानिब से लगातार अगर हम देखें LG इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि जितने भी KCC लोन्स हैं उनको जो है माफ़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पे जो अभी जून से कारोबार शुरू हुआ, हमारी डेली यहाँ से 100-150 गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो और रोज़ बरोज़ काम बढ़ता जा रहा है। हमने इस वजह से क्योंकि 4 साल कारकर्दगी, क्योंकि बीच में जो अनरेस्ट हुआ उसके बाद कोविड आ गया, हम उस तरह से नहीं मीटिंग कर सके, लेकिन आज हमने मीटिंग की थी जिसमें टोटल मेंबर जो फ्रूट मंडी के हैं और ग्रोवर्स भी थे। हमने उस हवाले से किया कि इस साल इंशाअल्लाह रहमान फसल भी अच्छी है और साफ भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, जिससे गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था खासकर पेस्टिसाइड से फर्टिलाइज़र पे, उससे हमारा जो इस साल का सीज़न है बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन नेशनल हाईवे की वजह से बीच में हुआ था, लेकिन LG साहब के हम बहुत ही शुक्रगुजार जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके कि हमारे जो सेब की गाड़ियाँ वो रास्ते से जा रही है। और इस टाइम हमारा मेन इशू था कि मंडी में कौन से काम होनी चाहिए क्या था, और ख़ासकर हमारा बारदाने का इशू है, जो बारदाने का रेट हाई हो चुका है। मैं आपकी वसादत से LG साहब से अपील करता हूं कि वो उसमें इंटरवेन करें ताकि जो वेनर मिलर्स है जो प्ले पत्ते का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा बारदाना जो है वो हाई हो जाता है, उन पर बैन लगनी चाहिए और बैंड सा ऑनर्स को अच्छी तरह से काम करने दिया जाए ताकि
जो भी इस पे रेट ज़्यादा चढ़ जाता है ये सीधा ग्रोवर पे असर पड़ जाता है और फिर आगे लोगों को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े। और मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ, LG साहब से अपील करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 5, 6, 7 सालों से जो भी ग्रोवर उसको नुकसान हुए हैं, ट्रेडर उसको नुकसान हुए हैं, 3 लाख रुपए तक का KCC लोन वेव ऑफ किया जाए, जो मेरी 6 सालों से डिमांड है। और इंशाल्लाह जब तक मैं हूं मैं करता रहूंगा इसको, ताकि ग्रोवर्स को फायदा मिले। ये क्योंकि हमने पिछले साल से ये इशू ग्रोवर्स के साथ उठाया, हमने इससे मार्च में एक अवेयरनेस कैंप भी किया था कि ग्रोवर्स का, ताकि वो ग्रेडिंग की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आगे कंपटीशन है हिमाचल के साथ, साउथ कश्मीर के साथ, ईरानियन एप्पल के साथ। हम कोशिश करते हैं कि ग्रोवर ग्रेडिंग की तरफ है और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 70% हमारी ग्रेडिंग ठीक हो चुकी है और इंशाल्लाह इस साल 100% हमारी ग्रेडिंग सही हो जाएगी और उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। ताकि अगर हम देखें जो पिछले कई सालों से 2016 से अगर हम देखें या 2014 की अगर हम बात करें, 2014 की अगर हम बात करें जब कश्मीर में फ्लड आया था, और उसके बाद अगर हम 2016 अनरस्ट की बात करें या जो कोविड-19 अगर हम कोविड महामारी की बात करें तो कोविड महामारी में भी जो है काफ़ी नुकसान जो है फ्रूट ग्रोवर्स को उठाना पड़ा था, जिसके चलते जो है वो अभी भी संभल नहीं पा रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम LG इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स के ऊपर जितने भी KCC लोन्स हैं उनको जो है जल्द से जल्द माफ़ किया जाए। और उनका ये भी कहना है कि मैं यही हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है, LG इंतज़ामिया या गवर्नमेंट तक जो है मैं यही आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स की जितनी भी डिमांड्स है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी हवाले से जो है आज मुस्तफ़ा मेमोरियल फ्रूट मंडी सोप एक यहाँ पर जो है एक इजलास का इनेकाद किया गया। तो सांबा में PHE डेली वेजेस की तरफ से एक विशाल रोष रैली निकाली गई है और सीधा संदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन को दिया गया है, तमाम नेताओं को दिया गया है, जिन्होंने इस PHE डेली वेजेस के मुद्दे को एक इलेक्शन स्टंट भी बनाया। और जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो लगातार इनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, इनकी मांगों को इग्नोर किया जा रहा है। और PHE डेली वेजेस पिछले 32 दिनों से लगातार हड़ताल पर है और सांबा में एक जन सैलाब आज इकट्ठा हुआ है। तो तमाम PHE डेली वेजेस से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन को दे रहे हैं, क्योंकि वार्निंग जिस तरह से लगातार दी जा रही है तो इससे भी आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली जो कल आपने कहा था कि हम एक रैली निकालने जा रहे हैं, तो आज आपने रैली निकाली है, चिताया है जम्मू कश्मीर प्रशासन को, और आपकी सेंट्रल बॉडी जो जम्मू से है वो यहाँ आपके साथ यहाँ शाना बशाना खड़ी हुई है। क्या कहेंगे और अगली रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि रणनीति तो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ। शुक्रिया ऋषि जी। हम सरकार को जो चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जन सैलाब जम्मू में आने के लिए आ रहा है और सरकार को जो करना होगा, हमारे डेली बेजर को परमानेंट करना होगा। अगर हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू इन्होंने नहीं की तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। और हम अपने जितने भी हमारे डेली बेजर जो रैली में आए हैं हम उनका थैंक्स करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर हमारी रैली का हिस्सा बने। इसके लिए हम उस डेली बेजर को मुबारकबाद है। और हमने कल बोला था कि हम सांबा का पुल बंद करेंगे, हमने पुल नहीं बंद किया, हमने खाली ट्रेलर दिखाया आज इनको। अगर हम LG सरकार को ट्रेलर दिखाया और अपने एक्शन साहब को भी ट्रेलर दिखा दिया है कि वो हमें हल्के में मत लें, अगर हमें हल्के में लिया तो आने वाले समय में इनकी कुर्सियां भी हम तोड़ फोड़ के बाहर फेंक देंगे। जे सरकार को हम चेतावनी देते हैं, हमारी रेगुलेशन पॉलिसी लागू कीजिए, इसके बिना हम जहां से नहीं लेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे इस रैली को लेकर? आप में काफी गुस्सा देखा जा रहा था प्रशासन के प्रति, नेताओं के प्रति, तो क्या कहेंगे आप तमाम इन लोगों के लिए? ऋषि जी, बात ऐसे कि हमने कल भी जैसे कहा था कि ये हमारी हालात का, हमारे घर का, ये हमारे नुमाइंदे हैं, इन्होंने मजाक उड़ाया है हमारा। क्या प्रशासन है, LG है, जहाँ तक कि जो हमारे अफसर हैं, हमारे एक्शन साहब हैं, हमारे चीफ साहब हैं, इन्होंने एक ड्रामा, एक सियासत को अंजाम दे रहे हैं और ये इतना गुमराह कर रहे हैं हमें कि हमारे बच्चे भी रोड पर आ जाएंगे। आज हालात थोड़े खराब थे, बारिश थी, इसलिए हम बच्चों को नहीं ले पाए और हम प्रशासन से, LG साहब से एक वार्निंग देते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट हम रोडों पे आ जाएंगे।
बच्चों को लेके, इसलिए हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए, इसके बिना हम नहीं हटेंगे। बिल्कुल रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहिए, उसके बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज रैली भी निकाली गई है, 32वां दिन आपका हड़ताल है और 32 दिनों में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई यहाँ आके संज्ञान भी लिया गया होगा तमाम अधिकारियों की तरफ से, और ये कहा गया कि आपकी जो 1 महीने की सैलरी जो रिलीज की जा रही है वो भी काट कर दी जा रही है। उसी के संदर्भ में भी ये एक रैली निकाली गई है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए ऋषि जी, अब सैलरी का कोई चक्कर है, हमारे 17 महीने की पहले पेंडिंग बेसिस है। हम सोच रहे 71 की हो जाए, 72 की सैलरी का तो हमने छोड़ दिया। हमने अपने साथियों को समझाया कि हमें सैलरी के पेज में मत फंसाइए, ये हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। हम सैलरी नहीं लेंगे, चाहे 20 की दे चाहे 22 की, जितनी इनकी मर्जी दे, हम सैलरी बाद में, हमें चाहिए पॉलिसी। हमने आज अपने साथियों से हमें पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे, और ये एक रोष रैली थी। इससे बाद हम जम्मू में अगर हमें जाना पड़ा, अपने बच्चों को भी लेके जाना पड़ा, हम वहाँ भी जाएंगे। लेकिन ये अब रोष रैली हम चेताना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेटर को, अपने एक्शन साहब को बता दिया, LG साहब को, चीफ साहब को, कि हमें पेंडिंग वेजेस हमें छोड़ो, हमें चाहिए नहीं। 71 की होगी, 72 की हो जाए, 73 की हो जाए, लेकिन अब हमारी तनख्वाह की कोई लड़ाई नहीं है। हमें चाहिए पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट चाहिए। हम अपने साथियों से माफ़ी चाहते हैं कि हमने उनको बोला था कि हम पुल बंद करें, लेकिन हमने ये एक टैलेंट को दिखाया है। लेकिन पॉलिसी हमें चाहिए, पेंडिंग तनख्वाह नहीं हमें चाहिए, बाद में देखा जाए, पहले पॉलिसी चाहिए। जिस तरह से आज यहाँ सांबा में रोष रैली निकाली गई है, तो कहा तो ये गया था कि हम पुल को बंद करेंगे, जिस तरह से जम्मू का तवी पुल बंद किया था, लेकिन एक ट्रेलर इनकी तरफ से दिया गया जो साफ तौर पर इनका कहना है, और ये तब तक अपने हकों को लेकर लड़ते रहेंगे जब तक ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी इनकी तैयार नहीं हो जाती, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हो जाता और 70 महीने की पेंडिंग सैलरी रिलीज नहीं हो जाती। ये लगातार प्रदर्शन जारी रहेंगे। 32 आज दिन हो चुके हैं हड़ताल के, और अब ऐसी नौबत आन पड़ रही है। ऐसा लग रहा है, इशारा होता हुआ, कि जिस तरह से ये तमाम लोग सड़कों पर हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर इनकी मांगों को गौर नहीं किया गया तो ये अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवारों को लेकर सड़कों पर आएंगे। जिस तरह से लगातार इनकी तरफ से वार्निंग्स दी जा रही है, चेताया जा रहा है, लेकिन कहां है वो नेता, कहां है जम्मू कश्मीर प्रशासन जो आज नहीं दिखाई दे रहा। तो लगातार ये हड़ताल इनकी जारी है, और आज सांबा में ये रोष रैली निकाली गई है PHE डेली वेजेस की तरफ से अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए। गुलाम हसन पामपुरी। थोड़ा सा बताना, जिस तरह से सागर साहब सहराई ने कल रात को जो आखिरी सांसें ली, और एक बहुत बड़ा नाम उनका था शेर व शायरी में, पेशे से वो उस्ताद थे, तो क्या बताना चाहोगे? सागर साहब सहराई जो हैं, सागर साहब सहराई को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये सर्विस में थे। उसके बाद इनको एक वक्त ऐसा आया था कि जब इनको एक सियासी पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी लिया था। सागर साहब सहराई बहुत नेकदिल इंसान थे, अच्छे आदमी थे, और जो इनने शेर व शायरी का जो इनका वो एक किस्म का बहुत बड़ा दबदबा जो इनका था, उसकी अब हम कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। आज सुबह जब हमने ये खबर सुनी कि सागर साहब सहराई जो हैं इस दुनिया से वफ़ात पा गए, तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुलाजिम के नाते मैं सागर साहब सहराई को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इनकलाबी किस्म के लोग थे ये, और हमदर्दी में जो है उसका इनके साथ कोई मुकाबला नहीं था। ये छोटे बड़े सब के साथ यकसा रहते थे। हमारी यही दुआ है डोडा लोपेट एम्प्लॉइज फेडरेशन सागर साहब सहराई के लिए यही कह सकती है कि अल्लाह ताला इनको जनरल फिरदौस में जगह अता करे। सागर साहब की जो मौत का हमने सुना तो बहुत ही अफसोस हुआ। ये तकरीबन मैं इनको 40-45 साल से जानता हूँ। एक उस्ताद शायर थे, पेशे से भी उस्ताद थे, और दिल के बहुत साफ इंसान थे। इन्होंने तकरीबन 3-4 किताबें इनकी 2-3 साल पहले शाया हुई थी, वो तो मुझे भी पढ़ने का मौका मिला उन किताबों को। लेकिन बहुत ही एक आला पाए के शायर थे। वो उर्दू हो, वो कश्मीरी हो, वो नात हो, वो नज़म हो, वो मनकबत हो, या सोसाइटी के बारे में जो भी पैगाम वो अपनी शायरी में देते थे वो लाजवाब होता था। तो बहुत ही अफसोस हुआ आज उनका ये सुन के कि सागर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो तमाम जो अहले कलम हैं, डोडा के हों, बदरवा के हों, या किश्तवाड़, या तमाम जम्मू कश्मीर के, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिल आज नहीं रोएगा। हर इंसान आज रोएगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़े शायर हमसे दूर हो गए हमेशा के लिए। शेर व शायरी की दुनिया में जो लोग हैं, कितना बड़ा नुकसान उनके लिए? मैं इतना कह सकूँगा कि वो एक उस्ताद शायर थे। उनसे हमेशा सीखने को मिलता था। जब भी वो डोडा, जम्मू, किश्तवाड़, बदरवा मिलते थे, तो हम जैसे छोटे छोटे लिखने वाले कलमकार कोशिश जो करते हैं, तो हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखते थे। उनका कलाम सुनते थे, या कुछ खुद लिखा होता था तो उनको सुनाते थे। तो हमेशा उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है।
और एक उस्ताद की नज़र से मैं उनको देखता था। पर्सनली मुझे तो बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। और जम्मू कश्मीर में इतना बेबाक शायर जिसकी हमेशा फरमाइश होती थी, अगर कहीं कुल हिंद मुशायरा हो या कश्मीरी या मखलूत, तो लोग 2-2 बार उनसे सुनना चाहते थे। नहीं, एक गज़ल और, एक नज़म और उनका गला, वो एक ज़माने में सिंगर भी थे, वो बहुत अच्छा गाते थे। वो हारमोनियम पे दस्तरस उनकी बहुत अच्छी थी। किसी का भी कलाम, उर्दू कलाम, पंजाबी, ये जो कश्मीरी, तो उनके गले का कोई मुका जवाब नहीं था। अपने ज़माने के एक बहुत बड़े सिंगर थे, एक बहुत बड़े कश्मीरी के शायर थे, साथ में उर्दू 3-4 किताबें उनकी उर्दू में भी आई हैं, मैंने पढ़ी हैं। वो 2-3 साल पहले मौका मिला तो पढ़ी भी है, उन्होंने गिफ्ट की थी मुझे। तो बहुत ही बड़ा नुकसान है सबके लिए। वो मुझे एक उनका वो कश्मीरी हाल ही में उन्होंने लिखा था, गालबन 1-1.5 साल पहले, तो उन्होंने मुझे ये एक व्हाट्सएप पे भेजी थी ये गज़ल अपनी कश्मीरी में, तो मुझे बहुत छूने वाली एक गज़ल थी। तो फिर मैंने कहा सागर साहब इसको कहीं गवाइए, कोई गाए। फिर इन्होंने यूट्यूब पे मैंने वो गज़ल देखी और उन्होंने भी भेजा था मुझे लिंक उसका कि भाई आप, मैंने ये गज़ल, एक अपना अच्छा कलाकार है बदरवा का आबिद बशीर, उन्होंने गाई थी। तो उसके थोड़े से मुझे ये बोल याद है, सना किम जलव होम बाम्बरियोस सुली या उन में रोम बाम्बरियोस खबर आसाम में ये तो बदनाम करनम लुकन ये हाल बोम बाम्बरियोस खताकारी बनन लेग जिट शहरिक मेल वक्तन ये होम बाम्बरियोस मैं कहते असम खबर मिच खान क्या गो। ये सागर साहब की वही गज़ल सुना रहा हूँ। मैं कहते असम खबर मिच खान क्या गो युथुई आख यार सोम बाम्बरियोस तनय रुदुन पानस्ताम सागर तनय रुदुन पानस्ताम सागर ये दिल यन यल में त्रोम बाम्बरियोस। इसके अलावा भी बहुत सी शायरी है उनकी, इस वक्त याद नहीं आ रही, तो बहुत सी शायरी है और बहुत ही छूने वाली शायरी है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ये हर एक के लिए एक नुकसान है, डोडा ज़िला, तमाम जम्मू कश्मीर के लिए, और ख़ासकर उर्दू कश्मीरी सब जो लिखने वाले हैं, कलमकार हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान। आपका नाम? मेरा नाम नसीमुल हक भट्ट है। मैं पेशे से एक मुदर्रिस हूँ। दरस व तदरीस मेरा काम है और इसके अलावा मेरा फ़न के साथ भी मेरी वाबस्तगी है। कल रात यहाँ के एक लेजेंडरी पोइट सागर सहराई साहब, जिनने कल रात आखिरी सांसें ली, और आज सुबह जब ये ख़बर आई तो बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। तो बहुत ही दुख का मकाम है उनकी उर्दू अदब में, कश्मीरी अदब में जो कंट्रीब्यूशन रही है। तो बहरहाल वो कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं, बहुत मतलब अल्फाज की कमी है। तो उर्दू अदब के साथ साथ कश्मीरी अदब, उन्होंने जो, वो एक अच्छे अफसाना निगार थे, अच्छे शायर थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत गज़लें उनकी मंजर आम पे हैं। तो उनकी मौत से ये जो एक खला पैदा हो गया है इस अदब में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी शख्सियत है, कोई उनका जो न्यामुल बदल होगा जो इस खला को पूरा करेगा। तो बहरहाल हर एक नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। आज उनकी, कल हमारी बारी है। तो बहरहाल सद अफसोस, बड़े अफसोस के साथ अल्लाह ताला उनको। किस तरह का कलाम वगैरह लिखते थे वो? उनका कलाम बहुत आला पाए का कलाम था, बहुत पहाड़ पे भी लिखी उन्होंने। गज़लियात में तो उनका कोई मुकाबला था नहीं, चाहे वो उर्दू उसमें ले लें आप या कश्मीरी में ले लें। एक गज़ल उन्होंने खुद कहा है, पूरित शीरित सागर चोनई वसील कब्र मंज। तो मुझे ये लग रहा कि उन्होंने अपनी मौत के बाद का जो लेखा जोखा है वो भी अपनी उस शायरी में उन्होंने बयान किया हुआ है। तो बहरहाल हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनको
जन्नत नसीब करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। शुक्रिया। डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह इलाके से आज एक बहुत बड़ी खबर सुबह सुबह ही सुनने को मिली। आपको बताना चाहेंगे एक बहुत बड़े पोइट सागर सहराई साहब जो इस दुनिया में अब नहीं रहे और काफ़ी अरसे से सागर सहराई साहब बीमार थे और कल रात को उनने आखिरी सांसें अपनी ली और इस दुनिया में अब सागर सहराई साहब नहीं रहे। और आपको बताना चाहेंगे सागर सहराई साहब एक बहुत बड़े शायर थे और उनके साथियों से आज हमने खास बातचीत की। उनने यही बताया कि सागर सहराई साहब की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, उनको हर वक्त याद हम करते रहेंगे। और जिस तरह से सागर सहराई साहब ने अलग अलग कलाम लिखे हुए हैं, खास करके आप देखते हैं जब भी डोडा के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है, खासकर कश्मीरी प्रोग्राम जब भी होता है तो उसमें सागर सहराई साहब की ज़रूर गज़ल कोई ना कोई गाई जाती है। और हमने खास मुलाकात आज की नसीमुल हक भट्ट जो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनने यही बताया कि सागर सहराई साहब का कलाम हम अक्सर गाते थे मगर सागर सहराई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, काफ़ी दुख में वो नज़र आए। और हम भी यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि सागर सहराई साहब को जन्नतुल फिरदौस अता करें।